Hello, guys. Welcome back to a brand new podcast. Today, we are meeting a very versatile personality. He's an entrepreneur, he's a mathematician, a Vastu scientist, and now he's on his journey to become an author. I am talking about Dr. Gaurav Mittal. He runs a company called IT Cons eSolution. Earlier, it was private limited, but now his company is listed in Bombay Stock Exchange. He also owns another company called Mahaguru Navgre, which is in FMCG, and they've got various products. So he's not only an entrepreneur. He's coming up, as I mentioned, he's coming up with a book called A Monk with a Merc. So he's a very spiritual guy, and we're going to learn not only his journey to entrepreneurship, but we will understand and we will learn a lot of knowledge about his spiritual journey. So let's welcome Dr. Gaurav Mittal. A very warm welcome, Dr. Mittal. Thank you. You're a bouquet of different flower and you have blossomed in all the fields that you step into. So tell us, how do you feel? मेरा हमेशा से एक ही चीज़ का मानना है, समय की गति है, जिस डायरेक्शन में लेके जाते जाएं, कराने वाला वही, हम केवल करता है. तो यस, into different fields, started from IT, ventured into FMCG, Ayurveda, schools, trust, and yes, as a hobby, astrology, numerology, वास्तु sciences. So काफ़ी सारी चीज़ें हैं yes प्रोफाइल के अंदर. So we'll get into each field that you've ventured in, starting from IT Cons eSolutions. So first of all, congratulations to you. इस साल आपकी कंपनी BSE में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई है. So heartiest congratulations. तो tell us a little about IT Cons eSolution Private Limited. आपको कैसे आइडिया आया? 2007 में आपने ये शुरुआत करी. हाँ, तब वो प्राइवेट लिमिटेड की तरह से शुरू किया था, बट अब लिस्टेड है तो लिमिटेड है. या तो बताइए कैसे आपकी इंस्पिरेशन थी उसके लिए? ओके, सो आई एम बीटेक इलेक्ट्रिकल फ्रॉम यूपी MNREC. उसका एक कॉलेज है KNIT सुल्तानपुर. जिस समय हम लोगों ने इंजीनियरिंग किया तो उस समय दे यूज्ड टू बी ओनली 7 कॉलेजेस इन यूपी एंड KNIT इज वन ऑफ देम थ्रू MNREC. श्योर. उसके बाद इंजीनियरिंग करने के बाद यस आई डिड माई MBA फ्रॉम जो नरसिंह मोंजी है उसमें विद फिनांस विद इंटरनेशनल मार्केटिंग. नरसिंह मोंजी बॉम्बे. यस, ओके. फिनांस विद इंटरनेशनल मार्केटिंग. राइट. उससे एक बिजनेस फ्लेवर आया, बिकॉज आप जब इंजीनियरिंग करते हैं तो आप एक टेक्निकल और टेक्नोक्रेट की तरह से काम करते हैं, एंड व्हेन यू डू एक्चुअली MBA तो एक फिनेंशियल एस्पेक्ट, एक मार्केटिंग एस्पेक्ट, एक सेल्स एस्पेक्ट आ जाता है जो आई थिंक इज रिक्वायर्ड फ्रॉम ग्रोइंग फ्रॉम टेक्नोक्रेट टू ए बिजनेस गाय. तो बस शुरू में जब मैंने जॉब शुरू किया तो आई गॉट इनटू से विप्रो. उससे पहले CMC था 1 साल. आई वाज द मैनेजर फॉर वन ऑफ द क्लाइंट साइड इंडियन ऑयल. श्योर. टेकिंग केयर ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर. IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा हॉबी भी रहा और शुरू से वो कंप्यूटर्स पे हार्डवेयर वाला पार्ट और सॉफ्टवेयर वाला पार्ट को जब शुरू में कंप्यूटर्स आए थे तो वहीं से एक लगाव शुरू हुआ असेंबल करने का, सब करने का. तो एक IT इंफ्रास्ट्रक्चर मेरा एक हॉबी रहा. वो हॉबी जो है जॉब में कब कन्वर्ट हो गया, फर्स्ट जॉब भी उसी में मिली, पता भी नहीं चला. देन तो मतलब आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब यू, बट I have a set of questions where we will discuss about your education and your initial job. But currently, I want to understand the inspiration behind IT Cons. Okay. So जब 2005 से 2007 में I was the CTO, youngest CTO of India with Citigroup BPO. There were a lot of changes which I brought into the organization. Right. एक अहम आ जाता है कि when I can do this much for this organization, why can't I do it for myself? Correct. Why should I be only working for others? वो जो एक अहम था, over the one night I discussed. That point of time I got married. It was only 3 years. I asked my brother and I asked my wife, I want now to do business. I am doing a lot of saving for this organization. I am doing so much well. I will do it for myself. And रात को 12 बजे I wrote the mail to my MD because I was actually putting to my MD that this is the notice period I'll be serving, and now this is my resignation letter. This is in 2007? This was 2007. Yes. 2007, okay. And
I started this organization. I started into say staffing as a staffing organization, and luck was by my side at that point of time, and I started getting a lot of good position. And with the support of my brother, who was based in US, we were getting good projects from US, and we started. No, so what had you started initially? Staffing on Which means hiring people. Taking the people onto our payroll. Okay. And outsourcing it to the different organizations. Okay, KPO sort of. Not KPO. Staffing is you hire the people onto your, whether it is Wipro, HCL, HP, IBM. This is kind of a body shopping. Right. So they also do project management along with that. And there were some projects where you just need to, give the skill set, skill manpower Sure. to different projects. Sure. So we started giving the skill manpower to different projects in US. Okay. And these people were working from my premises only. And per person billing was something like $33. And there were around 40 people who grew. So there was a lot of money which was coming. So initially, you're saying that you had a team of 40 people when you started the business already. So it grew over just in 3-4 months when I started this. Okay. And it was something more than the salary which I was doing. We were getting. Sure. बट उसके बाद से जब 1 साल हो गया तो उसके बाद से कुछ अप्स एंड डाउन आए जिसने मेरे को अध्यात्म की तरफ काफी ज्यादा मोल्ड भी कर दिया. आई एम श्योर कि आप उस जर्नी के बारे में भी जानना हाँ चाहेंगे. बिल्कुल. मैं आई एम वेरी inquisitive about learning your journey towards spiritual. सो मम्मा की साइड से, मतलब माई नाना जी साइड से सबसे ज्यादा असर वूडो साइंस का मम्मी की तरफ था. वो लेफ्ट आई का फड़कना, लेफ्ट हैंड का फड़कना, पैर का मूवमेंट और सपने देखना वाला एक पार्ट जो हम लोग आज की डेट में मॉडर्न युग में हम मानते हैं कि ये सब भ्रम है, कथा है, फ्रिक्शन है, बट एक्चुअली नहीं था. और आज मैं जब बात करूंगा उस चीज पे तो आई टेल दैट बिकॉज आई हैव सीन बोथ साइड ऑफ द कॉइन. वन इज कंप्लीटली एज ए टेक्नोक्रेट, साइंस का पढ़ा लिखा बंदा, MBA किया हुआ, MBA फाइनेंस विद इंटरनेशनल मार्केटिंग, PMP, एंड उसके बाद टेक्निकल सर्टिफिकेशन स्टार्टिंग फ्रॉम सन सोलारिस, एडमिन, HP UX, लोटस डोमिनो सर्वर, MCSC, MCSD, आई डोंट नो कितने सर्टिफिकेट्स होंगे वाले, और उसके बाद दुनिया भर के अवार्ड्स. बट द अदर साइड ऑफ द टेबल या अदर साइड ऑफ द कॉइन विच इज स्पिरिचुअली लिंक्ड एंड विच आई गिव मोर प्रेफरेंस नाउ बिकॉज आई हैव सीन बोथ द साइड. Sure. तो वो मम्मा का जो असर है सबसे ज्यादा मेरे अंदर आया है. मेरे को भी शुरू से था वो लाइफ टाइम का फड़कना कि कभी कोई चीज़ होने वाली है, और वो सब चीज़ें होती थी. इंट्यूशंस, क्या होने वाला है, कोई चीज़ बुरी होने वाली है, अच्छी होने वाली है, या कोई उस ज़माने में फ़ोन की बात तो बहुत दूर की बात है, गाड़ी और ये सब चीज़ें तो बहुत दूर की बात है, बट ये ऐसे होने वाला है, वो इंट्यूशंस हो जाती थी. जब 2007 में ये बिजनेस शुरू किया, बिजनेस शुरू करने के बाद से 1 साल बहुत अच्छा था. उस समय मेरे को एस्ट्रोलॉजी का ए नहीं पता था, न्यूमरोलॉजी का एन नहीं पता था. ये शुरू करने के बाद जब 1 साल के बाद जिस प्रोजेक्ट पे हम लोग काम कर रहे थे यूएस के, दे गॉट इनटू लिटिगेशन इन यूएस गवर्नमेंट विद सम अदर कंपनी. दे आस्क्ड द पीपल टू बी रिटेन्ड बिकॉज दे वर हाईली स्किल्ड पीपल, एंड दे सेड लाइक एक बार ये चीज हो जाएगी तो दे विल पे ऑफ. बट वो लिटिगेशन इतना लंबा गया कि ये जो बंदे हम लोग अपने रोज पे रखे हुए थे, we did not ask them to go. जो 1.5-2 साल में हमने सैलरी पे की, उसकी वजह से I came to a big loss. Because सॉरी टू इंटरप्ट यू डॉक्टर मित्तल, बट आप ये कह रहे हो कि जैसे आपने जब फर्स्ट ईयर 2007 में शुरू करा तो द प्रोजेक्ट दैट यू गॉट फ्रॉम यूएस, तो आप अपने पेरोल से ही पे करते रहे एंड यू वर नॉट बिलिंग योर क्लाइंट? यस. तो इनिशियली 1 साल वी वर बिलिंग, पर जब 1 साल के बाद ये लिटिगेशन में चला गया तो दे आस्क्ड कि आप अभी इन लोगों को रिटेन करके चलें बिकॉज दे वर वर्किंग विद द मैथमेटिकल मॉडल्स. व्हिच इज फाइन, बट जब आप उनको बिल कर रहे थे तो आपको आपकी पेमेंट्स वगैरह मिल रही थी? इनिशियली फर्स्ट ईयर. पर जब सेकंड ईयर में उन्होंने कहा कि इनको अभी रिटेन करके रखें, लिटिगेशन हमारे फेवर में होगा, इनको जाने मत दीजिए, बिकॉज हमने काफ़ी सारे उन पे ट्रेनिंग और उनके डेवलपमेंट पे बहुत ज़्यादा स्पेंड किया. और जिस प्रोजेक्ट पे वो लोग काम कर रहे थे इट वॉज मैथमेटिकल मॉडल्स डेवलपमेंट का, वॉइस रिकॉग्निशन एंड ऑल दैट स्टफ. तो उन्होंने कहा कि दोबारा से अगर प्रोजेक्ट में 6 महीने के बाद अगर हमारे पास आ जाता है तो दोबारा से मैन पावर को डेवलप करके दोबारा से करने में इतना टाइम लग जाएगा, तो ये जो भी ड्यूरेशन जाएगा विल पे ऑफ. बट unfortunately that company got into litigation for a longer duration. They could not get the product back, and जितने टाइम तक रिटेन करके चले उस टाइम तक में जैसे बोलते हैं ना लंका लग गई, वो चीज़ हमारे भुगतनी पड़ी, एंड वी कुड नॉट बिल्ड दैट पार्ट. सो आई हैड दैट लॉस. जब लॉस आया उसके बाद
तो वी गॉट बैक टू द स्क्वायर. So which means during that period, you never tried to fetch some more business as well, and you were relying on this company. सो अब जो मैं आपको वही चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जब आपका समय सही होता है तब तक मैंने किया वाली फीलिंग आती है. जिस दिन आपका समय खराब होता है तो आप हर एक चीज ट्राई करते हैं बट यू डू नॉट गेट एनीथिंग आउट ऑफ इट. ये चीज आज मुझे इस साइंस का, इस चीज का, हॉरोस्कोप का पार्ट का पता है. मुझे पता है कि अब इस समय क्या होने वाला है, क्या हुआ था, क्या क्यों हुआ. बट जिस समय नहीं था पता ये, और जिस समय चीजें हुई, तो उस समय आप केवल कर्म मीन्स जो कार्य कर रहे हैं उस पर बिलीव करते हैं. कर्मा डोंट लिंक कि हम जो डेली काम कर रहे हैं वो केवल कर्मा है. दैट इज आवर ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी. बट कर्मा इज बियॉन्ड दैट. तो तब तक वो नहीं पता था कि ये क्यों हुआ. तब तक ये लगता था कि मैंने उस कंपनी के लिए इतना कुछ किया and I made a saving of more than 2 crore per month kind of thing. Why can't I generate a business for myself? उस समय I used to be a young angry man because who has only seen the success within 5 years of life. Once you become CTO, the highest IT position where there is more than 40 people, technical infrastructure, 40 plus people into say development side are reporting to you. So you are on a different platform. You are on 7th heaven. Right. But that is not life. That is not something you are capable. You are only capable. There are more people who are capable. But you got the opportunity because you were being blessed, and that blessings were because of your previous birth karmas. It may be your parents' blessings. It may be your brothers and sisters and other people who were associated with you. Their blessings, and you did it. Time was by your side. Correct. But जिस समय time आपकी साइड से हट गया, जब समय ने दिखाना शुरू किया, उस समय समझ में आया कि इट्स नॉट यू, इट्स ही हु इज ड्राइविंग फोर्स. ही इज द वन हु इज एक्चुअली मेकिंग यू टू शो अप एज ए राइजिंग स्टार. यू आर नन अदरवाइज. हु नोज, आज मैं हूँ उसकी वजह से हूँ, कल नहीं हुआ, नाम होगा तो उसकी वजह से होगा, नहीं रहेगा तो दैट वॉज नॉट इन माई डेस्टिनी. तो ये जो एस्पेक्ट समझने का है लाइफ का, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है विच आई लर्न ओवर द टाइम. एंड जिस समय ये चीज़ शुरू के 3-4 साल, आई रिमेंबर टिल 2012, इट वॉज ए बिग स्ट्रगल पीरियड. आई यूज्ड टू बी यंग हैंडसम स्मार्ट गाय. पीछे बहुत सारी लड़कियां भागती थी, बट उसके बाद में जब 2012 के बाद भी, शादी के बाद भी, आई मीन देवर मैनी पीपल इन इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके बाद की शायद उन्होंने शादी भी नहीं करी उस समय तक में. बट उसके बाद सारे हेयर लॉस हो गए, वेट बनना शुरू हो गया, टेंशन से थायराइड आना शुरू हो गया. तो दोस थिंग्स, ऑल दिस थिंग्स हैपेंड. एंड ये सब चीज़ों ने मेरे को कम से कम भी 10 से 15 साल एजेड लगाना, मोर एजेड अपनी एज से कर दिया. तो टाइम टुक इट्स टोल ऑन टू द लाइफ, बट दैट वाज ए डिटर्मिनेशन. 2012 में जब काफ़ी सारे पंडितों, 2012 तक में काफ़ी सारे पंडितों और काफ़ी सारे न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लिया. किसी ने बोल दिया कि खालसा की पूजा करा दो, किसी ने बोल दिया कि मदर साइड का पितृदोष है, उनकी पूजा करा दो. स्पेंड अ गुड अमाउंट ऑफ द टाइम. बिकॉज क्या होता है कि जब तक आप राइजिंग स्टार हो तब तक आपके अंदर एक फीलिंग है अहम की कि मैंने किया, मैं कर सकता हूँ. ये जो मैं की फीलिंग है, जिस समय तक आपके सितारे सही हैं, भगवान की कृपा है, तो वो कहलवा देते हैं मैं. बट जिस दिन वो कृपा हट जाती है उस दिन मैं भूल जाते हैं आप. उस दिन याद आता है कि भगवान बचा ले, किसी तरीके से ये नैया पार करा दे, ये एक मेरा छोटा सा माइलस्टोन है, इसको पूरा करा दे, ये पूरा करा दे. तब आप समझ में आता है कि लाइफ क्या है. होता क्या है कि जिस समय तक आप अच्छे कॉलेज से पढ़ के निकले हैं, आपका वो संगति सब लोगों के साथ के बैठने उठने की इस तरीके की, जहाँ पे सब लोग कहते हैं कि बस आई एम डूइंग दिस, आई एम वर्किंग फॉर 18 आवर्स. गुड, यू आर वर्किंग फॉर 18 आवर्स. रिजल्ट मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे. रिजल्ट मिल रहे हैं तो क्या वो केवल आपके एफर्ट हैं? इस पे आई विल टॉक अबाउट इट मोर. इस पे मेरी एक इनफैक्ट इस चीज पे जर्नी पे एक बुक भी आ रही है जिसके बारे में मैं बताऊंगा, ए मॉन्क विद अ मार्क. Yes, we will talk about that. Yeah. But before we proceed, so 2007 you started, 2008 everything was fine, right? And from 2008 it took a turmoil, right? And till 2012 you say. Yes. तो तब तक 2008 से लेकर 2012 तक you continued. तो उसमें yes, I continued
जिस समय ये चीज़ हो गई तो जो वो शुरू के बंदे थे उनको वी हैड नो अदर चॉइस बट टू आस्क देम टू फाइंड आउट सर्च आउट द जॉब एंड एज पर द सेपरेशन पॉलिसी वी डिड दैट पार्ट। उसके बाद केवल 6 बच्चे जो मेरे इंजीनियरिंग कॉलेज के थे उनको हायर करके आई स्टार्टेड डेवलपिंग ए सॉफ्टवेयर ओके विच वॉज रिक्रूट प्लस टैलेंट मैनेजमेंट सूट। वी थॉट अभी हार्डवेयर का ज़माना था, अब लोगों को सॉफ्टवेयर भी चाहिए, ऑटोमेशन भी चाहिए एंड 4 साल हमने उस पर भी पैसे खराब किए, आई से आज की डेट में खराब किए। ओके ये कब से कब तक की बात है? 2008 से लेके 2014 तक। 14 तक आपने उसके ऊपर काम किया? उस पर काम किया, उसको पूरा डेवलप किया। डेवलप करने के बाद पूरा एक प्रोडक्ट बन के आ गया, सब कुछ आ गया। बीच में फंडिंग का भी हुआ, वी वर सपोज टू बी एक्वायर्ड, सब कुछ साइन हो गया बट फिर वो डेस्टिनी की बात आती है कि उस कंपनी ने जिसने हमें एक्वायर करना था सॉफ्टवेयर के लिए, सब कुछ करने के लिए, दे हैड देयर उनके जो इन्वेस्टर थे पी फंड, दे आस्क्ड देम टू यू नो सेपरेट आउट। तो उनको जो डील थी वो कैंसिल आउट हो गया, उनको कैंसिल आउट नहीं हुई, उन्होंने कहा कि थोड़ा सा लंबा टाइम लगेगा कि बिकॉज उनको एग्जिट देना था उनको पहले, तो वो नहीं हो पाया। तो 2008 से 2014 तक वी स्टार्टेड डेवलपिंग एंड वी डेवलप्ड गुड मॉड्यूल्स। बट दिक्कत क्या है कि आप वन टाइम सेल कर रहे हैं तो पैसे आएंगे मंथली, अदरवाइज आप एम्प्लॉयज की सैलरी पे नहीं कर सकते। आप सैस मॉडल पे जाते हैं तो अनलेस यू आर बीइंग फंडेड यू कैन नॉट सस्टेन मंथ ऑन मंथ बेसिस बिकॉज आपको सैलरीज पे करनी है। तो वो जो एक और तीसरा चीज, अगर आप इंटरनली डिप्लॉय करते हैं सॉफ्टवेयर को तो आपको सपोर्ट की जो कॉस्ट है इट इज ए किलिंग वन। तो वो जो एक लूप है, ना आप इधर निकल सकते हैं ना आप इधर निकल सकते हैं, आप बीच में पार्ट में फंस गए। तो वो सबसे ज़्यादा इरिटेटिंग मोमेंट था। बेटा बड़ा हो रहा है, छोटे से डेवलप हो रहा है, उसको अच्छी एजुकेशन भी लेनी है। तो डिस्पाइट ऑल दैट, अब समय था, साइट था, उसने मेरे को कंटिन्यूसली फ्लो में रख के चला कि नहीं बढ़ते जाओ, जो चीज़ हो रही है वो एक डेस्टिनी है। क्योंकि उस समय 2012 के बाद में से समझ में आ चुका था कि इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स अबाउट ही। जो उसने लिखा है, विधि का विधान है, उसको आपको गो थ्रू होना पड़ेगा और जितनी जल्दी आप उससे गो थ्रू हो जाओगे उतनी जल्दी लाइफ सुकून की हो जाएगी। आज जैसे मैं कई बार बोलता हूँ, आज की डेट में थोड़ा सा डिफरेंट है, मेरा कहने का व्यंग नहीं है वो, कि जिंदगी के अंदर धक्के खाने की जो नियति है, कितने धक्के खाने हैं, वो नियति है। And that is based on your previous birth karmas or residual sum balance of the karmas of the previous birth which you have earned plus whatever you have done in this birth. वो टोटल सम बैलेंस आपको डिसाइड करता है कि धक्के खाने हैं या लाइफ कंफर्टेबल होनी है। उससे ना कोई बचा है और ना कोई बच पाएगा। तो ये चीज़ 2012 के बाद से समझ में आ गई थी। शायद वो समझने के बाद से जब मैंने अपने आप को स्पिरिचुअली अलाइन किया, वापस से I got into the staffing business and recruitment business and today is a success story. So आप देखिए कि 2007 से स्टाफिंग से शुरू किया, बीच में प्रोडक्ट पे गया, प्रोडक्ट को बंद करना पड़ा, सब कुछ डेवलप करने के बाद में भी, सब कुछ करने के बाद में अच्छे खासे पैसे, जैसे बोलते हैं ना फूकना बोलने आज की डेट में, वो करने के बाद में भी अगेन आई हैव टू गो बैक टू द माय स्टार्टिंग पॉइंट। मेरे को उसको बोलना नहीं आता, सिर्फ 2 ही वर्ड मुझे पता है। तो क्या आप पहले 2012 से पहले नास्तिक थे और उसके बाद आस्तिक हुए हैं? नहीं, या आप शुरू से ही आस्तिक थे बट बीच में आपने छोड़ दिया? मैं आस्तिक हमेशा से रहा, बिकॉज सबसे ज़्यादा फैमिली के अंदर पूजा पाठ, धर्म कर्म कांड सब चीज़ें करने का शायद मम्मी की तरफ से मेरे अंदर सबसे ज़्यादा आया। बट जैसे कि मैंने कहा कि प्रीवियस जन्म के कर्मज जो मुझे भुगतने थे, शायद वो मुझे भुगतने थे, शायद उसने वो मेरा वहम और साथ में अहम तीनों चीज़ों को तोड़ना था कि बस यू आर नन, यू आर ओनली ए पपेट। आप कर्म कर रहे हैं, कर्म करने वाले सब कोई हैं। पत्थर भी जो तोड़ रहा है दूसरे के महल बनाने के लिए, वो कर्म कर रहा है, बट महल किसी और का बन रहा है। इसी तरीके से जब आप जॉब में थे, हाईएस्ट पेड जॉब पे थे, हाईएस्ट पोजीशन पे 5 साल में एक्सपीरियंस पे पहुंच गए, बट उसको आपने अपने अहम में लिया कि मैं ये कर सकता हूँ, तो अब देखिए कि आप क्या कर सकते हैं। शायद उसने उस दिन मुझे वो रियलाइज़ हुआ और उसके बाद से आज तक का जो डिफरेंट है, आज ना मैं सुख में सुखी, ना दुख में दुखी, ना मैं खुश। जो हो रहा है सब तेरी कृपा से हो रहा है। वो है ना एक किशन जी का, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो प्रभु, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। दैट इज द सेम स्टोरी। अच्छा, तो 2012 में आपने क्या डिफरेंटली किया इन टर्म्स ऑफ योर
स्पिरिचुअल जर्नी जिससे आपको रिजल्ट मिलना शुरू हो गए? तो यहाँ पे मैं आपको ये बताऊंगा कि नेम अलाइनमेंट, काफी कुछ पढ़ना शुरू किया, क्योंकि जब सब पंडितों से, सब न्यूमरोलॉजिस्ट से मिल लिया, किसी ने कहा कंपनी का नाम चेंज कर दो, तो होता क्या है कि आप कहते हो यार पहले से इतने सारे आफत हो रखी हैं, इतने सारी चीज़ें, आपने जो प्रॉपर्टी बनाई थी सैलरीज देने के लिए सब आपने सेल ऑफ कर दिया, आप अपने कहाँ तो आप राइजिंग स्टार थे, कहाँ आप अपने फ्रेंड सर्कल में सबसे नीचे आ गए। राइट। क्योंकि जिस समय राइजिंग स्टार था, सबसे बड़ी गाड़ी मेरे पास थी, जैजी सा ऑफिस था, जैजी सेक्रेटरी, सब कुछ था, बट जिस समय आप डाउन पे आते हो और आपको करोड़ों रुपए आपने खर्च कर दिए, हालांकि मेरे पास किसी का लोन नहीं था, my brother had been supporting to me, my wife had been supporting to me because she worked as a angel investor for me। मतलब आप ये समझिए कि उसको सैलरी ऑफिस से आ रही है 1 तारीख को, और आप बिजनेस में, मैं बिजनेस में दे रहा हूँ, तो इट यूज टू बी ए पिंचिंग टाइम, वेरी वेरी पिंचिंग टाइम, बिकॉज आप उसको सपोर्ट करने की बजाय यू आर बिकमिंग ए पैरासाइट ऑन हर। तो वो एक मोमेंट था जब आप कई बार फील करते हो कि बस चलो वो तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने कभी ये माइंड नहीं किया कि मेरे फ्रेंड्स मुझसे उस समय हाई सैलरी जॉब पे हो गए, या उन्होंने बड़ा फार्म हाउस खरीद लिया या कर लिया। दैट इज पार्ट ऑफ द लाइफ, दैट डेस्टिनी। जिस दिन भाग्य में उस दिन आप आज समझ सकते हो, बट जब आप वाली सिचुएशन में होते हो तो उस समय लगता है थोड़ा सा, पर मैंने कभी ये जेलस या ईर्ष्या की तरह से कभी फील नहीं हुआ। वो आज भी नहीं है, पहले भी नहीं था, ना कभी होगा। मैं चाहता भी हमेशा से ये था भगवान से कि किसी को कभी किसी का बुरा ना सोचें, कभी किसी के लिए नेगेटिव ना सोचें, अपने हाथ से जो हो सके करते रहें, देने वाले बने रहे, लेने वाले कभी ना बने। तो और प्लस वाइफ भी जैन धर्म से आई, तो ये चीज़ सोने पर सुहागा होगी कि भाई अब तो आप अगर थोड़ा बहुत सोचोगे भी नेगेटिव, तो यहाँ से बिल्कुल पहले सोचेगा कि आप देने वाले के लिए बने हैं, जॉब देने वाले के लिए बने। आपने ना तो जॉब पे जाना है, आप कर्म करते रहे, समय के साथ में समय ठीक हो जाएगा। हालांकि उसको समय एस्ट्रोलॉजी नहीं पता, बट आज मैं ये बोलता हूँ कि अगर केतु की भी ग्रह आती है तो 7 साल के लिए आती हैं, राहु की भी आती है तो 18 साल के लिए आती हैं, बट उसके बाद जब वीनस का टाइम आता है तो 20 साल के लिए भी आता है। तो वो जो मेरा दैट टाइम था, जो मेरे लिए नेगेटिव टाइम था 7 साल का, वो स्पिरिचुअल साइड अलाइन होने की वजह से 6 साल से भी कम में कन्वर्ट हो गया, और वहाँ से टाइम ठीक होना शुरू हो गया। अच्छा, तो आप ये कह रहे हो कि वो 7 साल की जगह आपका कम हो गया? वो जब मैंने अपने आप को अलाइन कर लिया कंप्लीटली, और ये सोचना ही बंद कर दिया मैं कर्म कर रहा हूँ, आई एम पुटिंग माई बेस्ट ऑफ द एफर्ट, वो रिजल्ट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, उसको अलाइन करते जाओ। आप जितने भी ये आप TQSS मैथोलॉजी कह लो, 6 सिग्मा कह लो, ठीक है, दीज आर फॉलो देम, आप उनको फीडबैक लें, अलाइन करते जाएं, लर्निंग लें, अलाइन करते जाएं, ठीक करते जाएं, बट जिस दिन देना होगा और लेना होगा वो उसी के हाथ में है, या आपके हाथ में नहीं है। सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना, इट्स ऑल दी वन। मेहनत हर कोई कर रहा है, एफर्ट हर कोई डाल रहा है, किसी को सक्सेस स्टोरी मिलके नेम क्रिएट हो जाता है, किसी को नहीं होता। जिसका नाम क्रिएट हो गया, ही बिकम द राइजिंग स्टार। इसका नहीं हो पाया, वो कहीं बुक्स में या हिस्ट्री में कहीं नहीं होता। और ये लाइफ का बहुत बड़ा सत्य है। हम लोगों को कह देते हैं कि ये डंकी जॉब कर रहा है, हम लोगों को कहते हैं कि ये स्मार्ट काम नहीं कर रहा, जैसे समय बुलवाता है, बट अदरवाइज उसका भाग्य अगर सही हो तो छोटे से एफर्ट इतने रिजल्ट दे देते हैं। जब भाग्य खराब हो तो कितने एफर्ट डाल लीजिए, वो सही नहीं होता, वो कुछ नहीं होता। सो 2012 में आपका टाइम जो है वो दोबारा वापस ठीक होना शुरू हुआ, व्हेन यू स्टार्टेड योर स्पिरिचुअल जर्नी अगेन। तो कितना टाइम लगा आपको दोबारा कमिंग बैक टू द ट्रैक? सी आज भी कमिंग बैक की तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं। अच्छा, नहीं। जब आप एक लेवल पे पहुंच जाते हैं, आज आप NSC BSc पे लिस्टेड हैं, तो कल को आपको $1 बिलियन एम्पायर क्रिएट करना है, तो बिकॉज दैट इज द एस्पिरेशन। आपको बेटे को जॉब करने के बजाय, नाउ ही इज अ ग्रोन अप किड, आई विल नॉट से किड, ही इज 18 years old नाउ, सो ही इज doing his BTech from a very renowned institute which is BITS Pilani। आपने खुद BTech करा और बेटे को भी BTech करा रहे, या उसका खुद मन था ये करने का? देखिए, BTech मैंने उसको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं किया, मैंने केवल उसको एक चीज़ कहा कि बेटा जॉब के लिए नहीं बने आप, यू हैव टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। मैंने उसको इसलिए भी बोला क्योंकि बिकॉज उसकी हॉरोस्कोप मैंने देखी हुई, मैंने बनाई है। तो वो चीज़ें होती हैं जो आपको अलाइनमेंट पता चल जाता है कि वेदर ही इज मेंट फॉर जॉब और ही इज मेंट फॉर बिजनेस। श्योर। जब हमने शुरू किया, आई वॉज द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर,
वी स्टार्टेड फ्रॉम जीरो। माई फादर हैड बीन इनटू गवर्नमेंट जॉब, और उस समय पेंशन जिस समय मेरा इंजीनियरिंग में हुआ तो ही गॉट रिटायर्ड। इट वॉज ए पेंशन अमाउंट। उस समय पेंशन भी 3,500-4,000 हज़ार रुपये होती थी। हम लोगों ने जब इंजीनियरिंग किया तो 11,500 रुपये में 4 साल में इंजीनियरिंग कर लिया। आज बिट्स प्लानिंग की 1 साल की फीस इज इन लैक्स एंड लैक्स। तो वो समय अलग था, आज का समय अलग है। आज के टाइम पे आप एक मुकाम पे हैं, आपके पास एक बैग है, तो आज की डेट में मेरा यही पर्पज़ है उसे कहने का भी। और ही इज ऑन टू द सेम नेचर, तो उसने जो चीज़ें देखी कि हाउ फादर ग्रू अप, हाउ ही स्ट्रगल्ड, हाउ ही स्टिल कुड सर्वाइव, he is getting that backbone or he is getting that much of residual, and till the time I am alive I only say to him कि मैं $1 billion बना के जाऊंगा, $1 billion को multi-billion dollar बना के आपकी जिम्मेदारी है, बट द सेम टाइम उसको कभी दिमाग पे चढ़ने नहीं देना कि आपने किया। समय आपके साथ था, आपने हमेशा दूसरों की हेल्प करनी है, गिविंग साइड पे बने रहना है, लेने वाली साइड पे, हाथ फैलाने वाली साइड पे कभी नहीं सोचना। तो ये एक जब शुरू से वो एक लर्निंग है, तो आज उसका भी यही है थॉट प्रोसेस कि हाँ, जो पापा ने किया, ही मेड इट टू हिमसेल्फ, नाउ आई हैव गॉट सम बैकबोन, मुझे उसको मल्टीप्लाई करके या नए डायमेंशंस में घुस के मुझे एक एंटरप्रेन्योरियल जर्नी पर जाना है। आई हैव टू बी ए सक्सेसफुल बिजनेस पर्सन, बट द सेम टाइम ए गुड ह्यूमन बीइंग विच इज हु इज स्पिरिचुअली अलाइन्ड। व्हेन आई से स्पिरिचुअली अलाइन्ड, मतलब बिजनेस करते समय आपके साथ में चाहते ना चाहते हुए भी कई सारी नेगेटिव एस्पेक्ट्स होते हैं, बट उन नेगेटिव एस्पेक्ट्स को हटाने का जो एक तरीका है, देने की भावना, डर विश्वास रखना कि भगवान साथ है और मैंने गलत किया है, एक्नॉलेज करना, उसके रिलेटेड जो आपने नेगेटिव किया है इमीडिएटली करेक्टिव एक्शन, करेक्टिव मेजर लेना, और डेली बेसिस पे। इट्स नॉट अबाउट कि एक दिन आप मंदिर में गए, घंटा बजाया, भगवान से प्रार्थना करी कि जो मैंने नेगेटिव किया उसको, नो, इट्स ए रेगुलर ग्रेजुअल डेली प्रोसेस। आप क्या नेगेटिव के बारे में बात कर रहे हैं? व्हेन यू गेट इनटू द बिजनेस, व्हाट नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट यू? ओके, तो बिजनेस में रहते हुए आपको कई बार किसी एम्प्लॉय को डांटना भी है, आपको काम नहीं कर रहा तो आपको निकालना भी है, आपने उसको वार्निंग भी दी, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसने आपको कर्ज भी किया होगा, ये सब नेगेटिव एस्पेक्ट आपके साथ जुड़ते हैं। आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, आप साधु सन्यासी नहीं है। व्हेन यू आर इनटू दिस मैरिटल वर्ल्ड, उसमें मटेरियलिस्टिक वर्ड की बजाय मटेरियलिस्टिक वर्ड, तो उस केस में आपको ये सब चीज़ों को गो थ्रू करना पड़ता है। तो दैट्स व्हाई आई ऑलवेज से बी लाइक ए मॉन्क बट डोंट बिकम ए सन्यासी। आप सन्यासी का मतलब है कि आपने ये मटेरियलिस्टिक वर्ड को छोड़ के आपने किसी हिमालय की गुफाओं में जाना है, पूजा पाठ में अपने आप को डेवलप कर लेना है, एंड वहाँ पे आप बिल्कुल इससे अपने आप को आइसोलेट करके भूल जाओ। बट यू आर नॉट इन टू दैट एस्पेक्ट, बिकॉज आप पृथ्वी पे आए हैं, आपकी जिम्मेदारी है, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे आपके लिए सांसारिक और आपके भौतिक जिम्मेदारी से लेके ऑफिस की जिम्मेदारी है। तो जिस पोजीशन पर आप बैठे हैं, उस पोजीशन के कर्म को आपको निर्वाह करना ही करना है। बट उस पोजीशन पर रहते हुए भी अपनी जर्नी को कि अगला जन्म ना लेना पड़े, मोक्ष की तरफ, साल्वेशन की तरफ अग्रसर होने के लिए जो कर्म आपने दिन भर में नेगेटिव किए हैं बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस, दे शुड नॉट इम्पैक्ट यू। वो जो नेगेटिव एनर्जी है, अगर पॉजिटिव एनर्जी नेगेटिव भी है, अगर आप रास्ते में ट्रैवल कर रहे हैं तो नेगेटिव एस्पेक्ट किसी और की नेगेटिव एनर्जी भी आपके ऊपर हावी हो सकती है। उस नेगेटिव एनर्जी को अपने ऊपर हावी ना होने के लिए जो अपने कर्म कांड, पूजा पाठ, अपने स्पिरिचुअल मंत्रास, अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, एक बैरिकेड बनाना है नेगेटिव एनर्जीज को दूर रखने के लिए, वो आपने रेगुलरली डेली बेसिस पे रिलीजियसली एंड रेगुलरली करने हैं। ठीक है, हम वी विल डिस्कस अबाउट दिस, बट currently I would like to stick with IT cons. So 2012 to 2014 was your recovery phase, right? Right. तो रिकवरी नहीं, डाउन फेज। 12 से बाद में रिकवरी शुरू हुई। हाँ, वही 12 के बाद ही मैं बात कर रहा हूँ। तो 2012 के बाद तो आपका रिकवरी फेज शुरू हो गया था। तो कब आपने ये समझा कि नाउ आई एम बैक ऑन ट्रैक एंड आई शुड स्टार्ट योर सेकेंड वेंचर विच इज महागुरु नवग्रह, right? And I think you started in 2018. Yeah. Okay, 2018 you started, which is a FMCG. Yes. Yeah. So tell us about that. So उससे पहले 2015 में I entered into the trust. वो जो देने की भावना आ गई थी, वो स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ गई थी कि हमें
विरक्ति के लिए और एक मोक्ष के लिए आपको देने की फीलिंग होनी चाहिए। आप जिंदगी भर जो मर्जी कर लो, खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाना है, ये एक फैक्ट है, सत्य है। और एक चीज़ ये भी समझ में आ चुकी थी कि पूत कपूत तो क्या धन संचय, पूत सपूत तो क्या धन संचय। यदि बेटा आपका उसके पास एजुकेशन है, आपके पास उसके पास आपके संस्कार हैं, तो यदि आप जीरो भी देके गए तो भी बना लेगा, यदि आपने ढेरों दे दिया तो भी खो देगा। तो वो एक देने की जो फीलिंग थी वो आ गई थी। उस समय ट्रस्ट वाला पार्ट इनकलकेट हुआ, जहाँ पे आई स्टार्टेड सपोर्टिंग टू डिफरेंट से ओल्ड एज होम, बिकॉज माता पिता के साथ मेरा ज़्यादा लगाव रहा। मैं कभी शायद बाहर जाने का भी हुआ तो मैंने वो जॉब छोड़ के नहीं उसको स्वीकार किया। मैं माता पिता के पेरेंट्स के साथ रहना चाहा। बट आई थी आपके पास अपॉर्चुनिटीज, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रही। जिस दिन जब मैं CSC में था तो मेरा UK का 3 साल का पहले वर्क परमिट लगा था, बट जिस दिन जाने का समय आना 8-10 दिन रह गए तो मैंने जो उनके वीज़ा वगैरह के पैसे लगे थे रिटर्न इट एंड आई लेफ्ट द जॉब। तो वो ये भी कह लो कि डेस्टिनी नहीं था, या फिर ये कह लीजिए कि मेरा खुद का भी मन नहीं था, तो इसलिए मैंने वो साथ दिया कि हाँ मुझे नहीं जाना है घर से दूर। मदर फादर गेटिंग ओल्ड एंड आई डोंट वांट टू लीव देम। और आज की डेट में भी यही है कि अगर जाना भी है तो घर में या तो वाइफ होंगे साथ में, या फिर मैं मोस्ट एक दिन से ऊपर हम लोग साथ में कभी ट्रैवल भी नहीं करते, उनको छोड़ के अकेले। तो ये जो था वो वहाँ से शुरू हुआ इसका एस्पेक्ट। उसके बाद 2018 में विद द फीलिंग, द सिमिलर सॉर्ट ऑफ द फीलिंग कि संसार में जो ये दुख है इसको क्या हम किसी तरीके से कम कर सकते हैं, और वो एक बिजनेस एस्पेक्ट भी बन सकता है। तो वी स्टार्टेड विद महागुरु नवग्रह विद राशि जल।